أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है, और अगर तुम इल्म आ जाने के बाद इन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। On behalf of Center for Islamic Studies, CIS, I welcome you all to the 10 days Arabic language crash course. Alhamdulillah, you are one of the few brothers who are lucky to benefit by such a good Arabic language course. And you should thank Allah subhanahu wa ta'ala that you have got an opportunity. So before we start the course, the second batch of the course, Alhamdulillah, the first batch has just finished. We had a packed hall from 6 to 8. And Alhamdulillah, we also have another packed hall from 8:30 to 10:30. And as far as CIS is concerned, Center for Islamic Studies, it is an endeavor, and this is the first workshop or 10 days course which we have started as part of the various other activities which CIS conducts. This is one of the important activity which we felt that to make the Muslims know the language of the Quran. And Alhamdulillah, we have been blessed by the presence of Sheikh Arshad Madani, who has come from Hyderabad. A brief introduction of Sheikh Arshad Bashir Madani. He is a graduate from Jamia Islamia Medina, who has graduated from Usul al-Hadith from Jamia Islamia Medina in the sciences of Hadith. And after graduating from Jamia Islamia Medina, he has done his MBA and MPhil in finance and Islamic banking. His specialization is Islamic banking and finance. He is the first Islamic scholar who has done his MBA and finance, who has done his MBA and MPhil. And he has given a lot of talks on various topics. His famous topic is Islamic banking. Recently, he has given a talk on the Islamic solution to inflation and recession, which was conducted by CIS. He has also been interviewed by BBC, and one of his major achievements is the telecast of his program on ETV Urdu. 165 episodes of his program have been telecasted till now, which has a viewership in 53 countries all over the world. So his expertise is in conducting dawah training programs. He is the only Islamic scholar who quotes the verses from the Quran and the Hadith, and his way of handling the question answer session is unique. This program he has conducted in various places in Hyderabad, in Bombay, and now we have the opportunity, the people of Bangalore, to benefit from this Arabic crash course. And he has also worked as a business development manager in the high-tech city of Hyderabad. Another request, all the brothers and sisters to come for the course with the identity card. Those of the brothers and sisters who have not been registered for the course will not be allowed inside this hall. And so before delaying any further, I would now request Sheikh Arshad Bashir Madani to start the course. Sheikh Arshad Bashir Madani. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सब भाइयों का और बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं और मेरी जानिब से और CIS मैनेजमेंट की जानिब से आप सबको हम रमजान मुबारक की मुबारकबादी पेश करते हैं। और आपने जो इरादा किया अरबिक ग्रामर कोर्स अटेंड करने का, हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये रमजान मुबारक हमारे लिए तालीम, दुआएं, इबादत, जिक्र अस्कार और उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा कर दे। ये जो अरबिक ग्रामर कोर्स है, तो इससे पहले कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ब्रीफ ताकि आप मुझे समझ सके, मैं आपको समझ सकूं। मेरा पढ़ाने का जो नेचर है अरब स्टाइल, यानी जो हमारे अरब के असातिज़ा हैं, जनरली वहां पर बिल्कुल ओपन ग्राउंड होता है, यानी पार्टिसिपेंट को पूरा ये इख्तियार होता है कि अगर उस्ताद से कोई गलती हो रही हो तो आप बता सकते हैं। ओपन ग्राउंड, ऐसा नहीं है कि नैरो माइंड कि भाई अरे उस्ताद क्या समझेंगे, अरे शेख क्या समझेंगे, नहीं, बिल्कुल आपको खुला। जैसे मेरे अंदर ये नेचर होना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करूं, बिल्कुल ओपन रहूं और पूरी तरह से आपको मौका मिलना चाहिए काउंटर करने का, तभी जाकर बात क्लियर रहेगी। तो मेरे पास अगर ये नेचर रहेगा तो आपके पास अदब से सवाल करने का नेचर रहेगा, तब तो फिर मजा आ जाएगा पढ़ने। सवाल करने में अगर एटिकेट्स फॉलो करे और जवाब देने वाला बिल्कुल ओपन माइंड रहे, उसको नेगेटिव ना ले, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर इल्म का फ्लो, नॉलेज लेना देना आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम ये नेचर मेंटेन करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर खूबी से ये कोर्स मुकम्मल करे और कुछ अचीवमेंट लिए इंशाल्लाह। और आपको पूरा मौका है कि आप काउंटर करें। अगर कोई टॉपिक पे आप समझते हैं कि एक कायदा बता रहा है, ग्रामर बता रहे हैं और उस पर आप ये कह रहे शायद फला एग्जाम्पल सही नहीं और एग्जाम्पल फिट हो सकता है, पूरा आपको इजाजत है। लेकिन याद रहे अगर आपका काउंटर सही ना रहा तो फिर मैं इनकाउंटर करूंगा। तो इस लिहाज से इसका नाम मैंने दिया है एडुटेनमेंट। इस कोर्स का नाम मैंने दिया है एडुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। क्योंकि जनरली ग्रामर, मैथमेटिक्स ऐसा है, चेहरे बिल्कुल डार्क कि आप क्या बोलते हैं, कि आप क्या उसूल बोलते हैं, आप क्या ग्रामर, और हैदराबाद स्टाइल में मुगलाई अंदाज मेनू जो सिस्टम रहेगा आपका हैदराबादी जबान में, दरम्यान में इंग्लिश, ताकि थोड़ा बहुत उसके अंदर हैदराबादी जबान में थोड़ा मजा आता है सुनने करने में। तो स्टाइल पूरी तरह से उसके आदाब बरकरार रखते हुए कोशिश करेंगे कि उसको यूज किया जाए ताकि आप लोग कहीं से भी बोर ना रहे। और कोशिश ये रहे कि आप में से एक एक पार्टिसिपेंट भी मेरे लिए अहम है, क्योंकि सब इंसानियत का पार्ट और उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा है। हम लोग किसी एक पार्टिसिपेंट को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, किसी एक पार्टिसिपेंट पर भी हम हर एक पर तवज्जो देना हमारे लिए जरूरी। हम कोशिश करेंगे कि हर एक के लिए क्लियर रहे मैसेज। सिस्टर्स के लिए भी वहां पर 2 फैकल्टी है, मैं चाहूंगा कि फैकल्टी अपना तारुफ करा दे पहले। 2 फैकल्टी है उधर, और यहां पर बदर साइड में भी अब्दुल खयूम भाई आपके पास, खासतौर से जो होमवर्क सेशन है, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का सेशन है वो तो 15 मिनट 10 मिनट जो भी रहेगा 2 घंटे में उसको एलाबोरेट करते हैं 2 घंटे में। असल जो पार्ट आपके पास रहता है वो रहता है कि जब हम पढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से आपको होमवर्क करना पड़ता है। वो होमवर्क असल होता है जिसको मैं बहुत चाहता हूं, क्योंकि उसमें आपको काफी तकलीफें मिलती है, वो मुझे बहुत पसंद है।
उसमें आप लोग काफी दर्द होता है, हाथ को, पीठ को, आराम नहीं मिलता, सोना चाहते हैं आप लोग, रोजा लग सकता है, इफ्तार का टाइम आ सकता है, घर के सौदे, उसके बाद भी होमवर्क करना है। असल जो मुझे पसंद है वही एरिया पसंद, जो आपके तकलीफों वाला एरिया, क्योंकि उसके अंदर से ही सोना जब अच्छा उसको जलाया जाए तो कुंदन बनता है, कीमती बनता है, उसकी निखार, उसकी रोशनी। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इंडियन नेशनलिटी से अरब नेशनलिटी की तरफ जाने वाले हैं, उसका बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह, शुरुआत तो करेंगे। तो ये अरबी ग्रामर कोर्स का एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे ख्याल से किसी के पास ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि 10 दिन में स्कॉलर बन जाएंगे, इतना तो नहीं है, और मेरा भी ऐसा कुछ इरादा नहीं है इसका। अलबत्ता 50% कुरान मजीद समझेंगे, ये जो सवाल है ये अहम है, जो समझना जरूरी है। इतने दिनों से, 5 दिनों से, काफी जब से पॉम्पलेट बटा है बेंगलुरु में, तब से सवाल आया है दिमागों में, और वो आज हल करके जाना ही जाना है। आखिर है क्या है, राज क्या है, ये सीक्रेट क्या है, ये 50% का मतलब क्या है, और क्या वाकई है या बस स्टंट है, प्रेजेंटेशन है, वो भी समझ लेना, ताकि आज ही शेख को समझ जाए कि शेख किस हद तक क्या बोलना चाह रहे क्या, आखिर बेंगलुरु में आके चाह रहे फायदा पहुंचाना चाह रहे, कुरान मजीद से करीब करना चाह रहे, और एक वे मिलेगा इंशाअल्लाह। हम ये नहीं, जैसे फुटबॉल का मैच शुरू होने के लिए एक पहले किक पड़ेगी, उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा, गोल आप लोग मारेंगे, किक दिलाना मेरा काम है, गोल मारना इंशाअल्लाह आप लोगों का काम है। तो एक वे मिलेगा जिससे कि आप कुरान मजीद का 50% कुरान मजीद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रामर आपको चार्ट दिए गए हैं उसके अंदर जो ग्रामर हम आपको ब्रीफ करने की कोशिश किए हैं, ये 50% ग्रामर रिपीट हो रहा है, यही ग्रामर कुरान मजीद में रिपीट हो रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे यही 50% रिपीट हो रहा है, इसलिए से 50% ग्रामर इंशाल्लाह आपके सामने है पेपर पर, एक पेपर पर। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो 50% यही रिपीट हो रहा है। और 210 वर्ड जो मैंने आपको दिए हैं, कुरान मजीद में 50% ये वर्ड रिपीट हो रहा है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो 50% वोकैबुलरी आपके हाथ, जो आपको फाइल की शक्ल में दी गई, मेरे ख्याल सबको फाइल मिली होगी, जब 5 दिन पहले जब आपने एनरोल करवाया था तो उसमें 212 वर्ड, 212 वर्ड कुरानिक वर्ड के नहीं आपके पास, वो है ना उसमें। तो वो वर्ड वोकैबुलरी 50% वोकैबुलरी उसके अंदर, अगर आप वो वर्ड याद कर लेंगे, 200 वर्ड पुरानिक वर्ड याद करेंगे, तो ये वर्ड कितने मरतबा रिपीट हो रहे हैं? 50%। मतलब ये निकला कि 50% वोकैबुलरी आपके जेब में यूज बार बार हो रहे। और ये चार्ट जो आपके पास यहां पर है, इसके अंदर ग्रामर, अगर आप इसको डाइजेस्ट कर लेते अच्छे तरीके से, तो 50% यही ग्रामर रिपीट हो रही। किसी का एक्सपेक्टेशन बताए, 2-3 भाइयों का हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कोर्स से? एक भाई की तरफ से, फिर एक बहन की तरफ। और हम ये बता दें कि सिस्टर्स में बाद वक्त ख्याल होता है कि भाई औरत के आवाज का पर्दा है, तो गलतफहमी है, पहले दूर कर देना है। औरत के आवाज के पर्दे का मतलब ये है कि जब घर में औरत अकेली हो, खातून है, बाहर से कोई गैर महरम आके दरवाजा खटखटा रहा, तो उस वक्त पर कहा गया सूरे अहज़ाब नंबर 33 आयत नंबर 34 और 35 में कि फला तग़ज़ाना फिल क़ौली, कि अपनी आवाजों को नाजुक करते हुए मत बोलो, ताकि सामने वाले इंसान के पास गलत ख्यालात ना है। उस सेंस में है वो। लेकिन जब एजुकेशन का मसला होता है तो ऐसे वक्त पर औरत की आवाज का कोई पर्दा नहीं है। दलील प्रूफ क्या है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस बयान करती थी, नरेटर ताबई है, और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सही बुखारी सही मुस्लिम में आप पढ़ेंगे, मुझसे कहा आयशा रज़ियल्लाहु ताला। कई औरतें सहाबियात है, खवातीन है, ताबई है, उनसे रिवायत करने वाले कौन है? मर्द हज़रात। सुनेंगे तो बयान करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे खवातीन आकर सवालात क्या करती थी, सहाबा से क्या करती थी। इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मसले में इस्लाम ने उतनी तंगी नहीं रखी है। तो लिहाजा मैं अगर कुछ सवालात करूंगा तो इंशाल्लाह आप लोग उसका जवाब देंगे। खासतौर से आज तो उतना होमवर्क नहीं है, कल जो ज्यादा होमवर्क का दिन रहेगा, जो मेरे लिए बहुत अहम दिन है कल के लिए। आज का दिन मुझे ज्यादा बोलना है, कल आप लोग ज्यादा बोलेंगे, मैं ज्यादा सुनूंगा। तो आप लोग होमवर्क वहां से भी सुना सकते हैं, फैकल्टीज को सुना सकते हैं,
तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फैकल्टीज का भी सहूलत के लिए इंतजाम किया गया है, ताकि बाद खवातीन हो सकता है उनकी आवाज यहां तक ना है तो फैकल्टी सुन लेंगे इंशाल्लाह। कुछ बताए एक और एक खातून की तरफ से, पहले चलिए लेते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन एक बताए, कोई जो आगे फर्स्ट इनिशिएट जो करेगा लीडर रहेगा। चलिए बिस्मिल्लाह। ये क्लास है ये क्लास, ये 10 दिन से क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड जी, मैं जो एक से अरबी थोड़ी बहुत समझ सकता हूं जी, मैं जो उसको मजीद जो है आगे मतलब टारगेट कुरान मजीद, कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हाँ जी, कुरान में जैसा बरतल कुरान तब्दीला कुरान को आहिस्ते आहिस्ते समझ के पढ़ो, समझ के, तो हमारे को मौका मिलेगा कि इसको समझ के पढ़ो, माशाअल्लाह, अंडरस्टैंड। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 82 में अफला यतदब्बरून अल-कुरान, गैर मुस्लिम जो कलमा नहीं पढ़े उनके बारे में कह रहे हैं क्या वो लोग कुरान पर गौर नहीं करते। यानी मतलब ये है कि कुरान एक ऐसी किताब है गैर मुस्लिम भी समझ के कलमा पढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास गलतफहमी में क्या हो रही है, हम मुसलमान कुरान नहीं समझ सकते, कुरान नहीं समझ सकते, गैर मुस्लिम समझ भी रहे, कलमा भी पढ़ ले रहे और अभी समझ रहे नहीं, उनके चक्करों में। मुसलमान समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, 50 साल से ये मसला हल हो रहा है, इसमें भी गैर मुस्लिम समझ रहे भी कलमा पढ़ ले रहे और बेचारे मुसलमानों समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। नहीं मालूम, प्रॉब्लम कुरान में नहीं है, समझने वालों में कुछ है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब आप समझ रहे हैं तो थोड़ी अरबी भी आ जाए। सिर्फ अरबी से तो कुरान मुकम्मल समझ में, नबी और सहाबा के तरीके से समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए पुश बैक, शुरुआत, किक, उसके लिए वे, रास्ता इंशाअल्लाह इसमें आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ताकि जो कुरान आप नमाज में पढ़ रहे हैं वो आप समझ सके। जो दुआएं हम पढ़ रहे हैं तो तोते की तरह रखना कोई भी इंसान पसंद नहीं करता, लोग सब चाहते हैं नमाज में इमाम साहब क्या पढ़ रहे, कम से कम वो समझ में आए। तो अगर आपको 50% को ट्रिक्स, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू वर्क स्मार्टर देन हार्डर। हमेशा ये नसीहत रखना चाहिए, आदमी चाहिए कि ट्रिक्स फॉलो करे, टेक्निक्स फॉलो करे, खासतौर से आज का जमाना बिजी जमाना। कोर्सेज, इसके ये कोर्सेज के पीछे मकसद क्या है, ये जो कोर्स बनाया गया इसके पीछे बैकग्राउंड, जो बड़े बड़े कोर्स रहते थे, 8 साल का कोर्स आलिम कोर्स होता है जिसको हम आलिम फाजिल कहते हैं। इंडिया के जो सर्कमस्टांसेस है, जो हालात हैं, हर एक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 8 साल का कोर्स या 6 साल का कर सके। बिल्कुल नामुमकिन है कि हर एक को हम कहें नहीं वो करना, साथ में आप इंजीनियर बनना, हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। तो ऐसे वक्त पर लेकिन सारे मुसलमानों का जज्बा होता है कि हम अपने अल्लाह ताला के कलाम को समझे। भाई हम एमसेट दे रहे हैं, आईसेट दे रहे हैं, इंसानों के लिखी हुई किताबें समझ रहे हैं, हम अल्लाह के कलाम को नहीं समझे। एक जज्बा है अंदर, बर्निंग है, लेकिन चूंकि मौका नहीं मिलने की वजह से हालात नहीं बन, वरना ये रिस्पॉन्स बतला रहा है कि 2-2 बैचेस बनना, फिर 1000 रखने के बावजूद, इसका मतलब हर एक में शौक है। बस हमको चाहिए कि थोड़ा अच्छे से दिलचस्प माहौल कायम कर दे, थोड़ा अट्रैक्शन डाले, थोड़ा उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे, लोगों को थोड़ा आसान टेक्निक देने की कोशिश करें, फिर देखिए आप उम्मत मुस्लिम पूरी पड़ेगी। तो 8 साल का कोर्स हर एक के पास टाइम नहीं है, फिर उसका 5 साल का कोर्स बनाया गया, फिर भी बहुत सारे लोगों का इतना टाइम नहीं कि 5 साल भी दे सके। फिर कोर्स आया 1 साल का, कहे कि भाई ठीक है आलिम कोर्स वो लोग के लिए, अलबत्ता जो लोग बिजी है उनके लिए 1 साल का कोर्स। फिर भी लोग इतने बिजी थे कि 1 साल के कोर्स भी कामयाब तकरीबन नहीं हो रहे। वजह क्या है, जो बैचेस है वो बैचेस, वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले, बैचेस फारिग होने से पहले ही लोग फारिग होकर निकल जाते, पाबंदी से नहीं आता। अभी बेचारे आलिम साहब आते, समझाने आते, सीट पूरे खाली आते, और आज भरे हुए, कल भी रहेंगे ना, फिर 10 दिन का है, अब इससे भी अब हो सकता किसी दिमाग में आ, 1 साल का 3 महीने में आ, 3 महीने का 40 दिन में आ, 40 दिन का 10, अरशद कुछ 5 की भी गुंजाइश है कहते। शेख अहमद दीदार रहमतुल्लाह अलैह बोले आज हम में से हर एक आदमी चाहता है कि गोली खाए सुपरमैन बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इल्म के लिए थोड़ा, एक अरब के लोग जुमला कहते हैं, इदा आते तका कुल्ला का, जब आप अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दोगे तो अल इल्मु युती का बादो, तो इल्म क्या करेगा, अपना थोड़ा सा हिस्सा देगा आपको, पास करेगा। आधा दिए तो अपने आपको,
अगर आप अपने आप को पूरा दिए तो थोड़ा इल्म मिलता, आधा दिए तो, इसलिए पूरा इन्वॉल्वमेंट देना। तो आप 10 दिन में एक भी पट के बगैर इन्वॉल्वमेंट होना, पट ने मतलब बिलिट नहीं होना, एब्सेंट नहीं होना इंशाल्लाह। और फिर साथ में एक आदमी कहेगा भाई 8-8 साल ले जाऊंगा, 10 दिन में क्या सीखूंगा, तो अरब के उलमा और एक पॉइंट बोले, अगर पूरा हासिल नहीं कर सकते तो थोड़ा भी मत छोड़ो, पूरा हासिल करने के चक्कर में जो है वो तो भी मत करो। हो सकता है शुरुआत में आपको कई ऐसी मिसालें हैं जो आलिम कोर्स उन्होंने किया नहीं, ऐसे ही कोर्सों के जरिए से अचानक उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। उसके बाद उन्होंने ऐसी खिदमत की कि माशाल्लाह मरने के बाद भी लोग उनको रहीमहुल्लाह कहकर अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते। और हिंदुस्तान में मशहूर है मरने के बाद दुआ मिलती, मरने से पहले कुछ भी नहीं मिलता, मरने से पहले खाली तनकीदें मिलती, मरने से पहले रहमत की उम्मीद है हमारी, तो रहमत नए थे खाली तनकीदा, ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा थे, वो शेख मर रहीमहुल्लाह इतने अच्छे थे, मालूम क्या पढ़ाते थे, कोट पहन लेके आके पढ़ाते थे, बहुत कोसा करे थे, पहले तारीफ में। तो ये हिंदुस्तान, इसलिए आप तैयार होना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। आपको नेगेटिव फीडबैक जल्दी मिलते हैं हिंदुस्तान में, पॉजिटिव फीडबैक कुछ भी नहीं मिलते। तो इस लिहाज से आप लोग ये नर्वस मत होइए, कोई आपको तारीफ नहीं करेगा ये 10 दिनों में, तो आप नर्वस होने की जरूरत नहीं, आप सीखते जाइए इंशाल्लाह। अलबत्ता होमवर्क जरूर कीजिए। तो ये जो आपके पास चार्ट है, हमारे सिस्टर्स के पास से एक पहले ले, वो लोग क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए, कोई एक बताए। नमाज में अपनी पूरी 100% दिलचस्पी नहीं लगती है, तो जब समझ में आएगा तब दिलचस्पी आएगी, तो इसीलिए कुरान को समझना बहुत जरूरी है ताकि नमाज में दिलचस्पी आए, नमाज में ताकि कुरान मजीद जो पढ़ रहे समझ में आए इंशाल्लाह। तो माना है तकरीबन सिमिलर आंसर है सबके अल्हम्दुलिल्लाह। दरख्त झाड़ हैदराबादी दक्षिणी जबान, दरख्त झाड़ लगाने का मकसद क्या है, फल खाना है। साइड में अगर शैडो साया भी मिल जाता है तो बोनस। तो इसी तरह अरबी सीखने का मकसद तो इंशाल्लाह कुरान समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम। साइड में अरबों से बात हो सकती है, कल के दिन आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, और 10वें दिन अरबी में स्पीच इंशाल्लाह। मुझे यकीन है ऑलरेडी जो हमने रिसर्च किया है, ये जो हमने अप्लाई किया है ये कोर्सेज बम्बई में, हैदराबाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने महसूस किया कि 4-5 साल से रिसर्च करने के बाद कि 10 दिन का जो कोर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10वें दिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो स्पीच भी दी अरबी में, खुद से बना के। और उसमें बाद ऐसे रिवर्ट है जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिनकी उम्र 65 ईयर, वो उम्र में जिनको अलीफा भी नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी स्पीच दी। तब मुझे यकीन आया, तब हमने बड़े पैमाने पे ऐलान किया। उससे पहले हमने बड़े पैमाने पे कभी भी ऐलान नहीं किया, क्योंकि हम अभी रिसर्च में थे। जब मुझे यकीन हुआ कि रिवर्ट जिनको अलीफा नहीं आता था अल्हम्दुलिल्लाह वो यहां तक आ सकते हैं, क्यों ना मैं सबको पढ़ाऊं फिर। तो हम ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि कल के दिन इसको हम एयर करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे, तो घर घर जाएगा कोर्स इंशाल्लाह। तो इस लिहाज से हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ की आबादी लगभग, उससे बढ़ के इंशाल्लाह। तो अगर सब लोग ये कल के दिन इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का कम टाइम में, वर्क स्मार्टर। तो टाइम कम है, सब तक पहुंच नहीं सकते, तो सीढ़ी के जरिए से सबके घरों में पहुंच जाना। तो ये तो 2 चीजें इंशाल्लाह। 50% कुरान मजीद क्या है वो भी आज समझेंगे इंशाल्लाह, अभी और समझ में आएगा आपको कैसे। आखिरी में जाने से पहले आपको समझना है 50% कुरान में समझने का मतलब क्या है एग्जैक्ट, और वो कैसे मुमकिन है, पॉसिबल कैसे है, ताकि टारगेट क्लियर रहा तो अचीवमेंट लेने में आसानी होती है। सवाल I'm also a revert Muslim. I also doesn't know Arabic. Okay. And what procedure I should follow? ऐसे लोग चाहिए मुझे ना। अगर इनको पढ़ा लिया तो मतलब दूसरे ऑलरेडी पढ़ लें। अगर मैं वो लेवल पे जाके पढ़ा सकता हूं, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो अलीफा नहीं आता है तो खुश हो जाइए, मैं वैसे लोगों को ज्यादा टारगेट, मतलब है कि वो मेरा, अगर मैं उनको पढ़ा लूंगा तो बाकी खुद ब खुद पढ़ेंगे, क्लियर है बाय डिफॉल्ट। तो बेफिक्र। हमारे जो मदरसों में आलिम फाजिल होते हैं वो खुद कॉन्वर्स नहीं कर सकते अरबी,
एक्सेप्ट नदवा और देवबंद के आलिमों को छोड़ के दूसरे मदरसों के जो आलिम से निकलते हैं वो खुद बातचीत नहीं कर पाते। नहीं, वो सर टेक्निक है, एक दिन बिठा दीजिए पूरा में बात कराया तो टेक्निक है थोड़े 95 रट्टा मार दीजिए बस, 95 वर्ड दिया ना कन्वर्सेशन और रट्टा मार दीजिए हो जाता, लेकिन उसका थोड़ा टेक्निक्स है। और कुरान समझ गए तो हदीस, कुरान की लैंग्वेज और ज्यादा, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, उसकी लैंग्वेज और है, वो तो और बड़ी फल आ जाए। मतलब ये है कि आप अरबी समझना, मतलब कुरान का मतलब अल्टीमेट आखिरी की चीज है, अगर वो समझना आपको आ जाएगा तो बाकी दूसरी अरबी आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप स्पीच दे सक रहे हैं, मतलब ये निकला कि आप कन्वर्सेशन कर ले सके, मतलब आपको पुश मिलेगा, हर चीज में एक शुरुआत मिल जाएगी, उसके बाद आपको आइडिया मिलेगा, कल के दिन आप नेट पे बैठ के ग्रामर के जरिए से और आगे निकल सकते हैं, यानी कल के सेल्फ स्टडी करके भी बहुत आगे निकल सकते हैं, आपको एक वे मिलेगा इंशाल्लाह। आले ज़बान भी जो है, हाँ, आले ज़बान अरबी के जो लोग हैं वो भी जो कुरान को समझने के लिए बाकायदा जाकर तालीम करना पड़ता है, क्योंकि वो अरबी अलग है, ये अलग है। तो ऐसे अगर कुछ कोर्सेस वो कर लेंगे तो, क्योंकि माशाल्लाह से मस्जिद नबी के जो इमाम है शेख हुदैफी, उनके फर्जंद को अल्लाह के से ग्रामर में पढ़ा है, तो इस लिहाज से आप एडवांटेज कर सकते हैं कि इंडियन ग्रामर में आगे निकल रहा है। ये स्पोकन अरबिक और कुरान के अरबिक में कुछ फर्क है क्या? हाँ, बहुत फर्क है, बहुत फर्क, क्योंकि वर्ड तो सेम है, जैसा कि हमारे भाई ने मिसाल दी थी कि दूध है, उससे फिर दही बनेगा, उससे फिर और खवा बनेगा, लेकिन मेन तो देखने में वही नजर आएगा, उससे कई चीजें निकलते जाएंगी। अरबी, वो भी अरबी है, ये भी अरबी है, लेकिन कुरान मजीद की अरबी बहुत ही खालिस अरबी है, उसके अंदर कोई ऐसे मिलावट नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन बातें करते करते कई प्रोनाउंसिएशन टेढ़े हो जाते हैं, कुरान मजीद में बहुत क्लियर कट है, जो अरब का असर है। तो हम आते हैं, 2 पॉइंट है क्लियर हमारा टारगेट इंशाअल्लाह नज़ीर। तो कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो 10वें दिन यहाँ पर ठहर कर स्पीच देना चाहेंगे 5 मिनट के? पूरे लोग? तो इंशाअल्लाह आप लोग पूरे स्पीच देने तैयार हैं और सारे जो है कुरान में समझने तैयार है। तो जो आपको मटेरियल दिया गया है उसका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कराता हूं, क्योंकि ये होमवर्क बेस्ड कोर्स है। होमवर्क जितना तगड़ा रहेगा, रॉ मटेरियल जितना अच्छा रहेगा, फिनिश गुड उतना अच्छा निकलेगा। तो वैसे ही हर कोई अरबी सीखना चाहता लेकिन होमवर्क करना नहीं चाहता, तो वैसा नहीं होगा। तो माशाल्लाह 300 से ज्यादा कॉल हमें मौसूल हुए इस कोर्स के लिए, लेकिन हमने उसमें से 100 को सेलेक्ट करने का इरादा किया। फिर भाइयों ने कहा नहीं नहीं, इतना जज्बा लेकर आ रहे हैं, कैसे हम महरूम कर सकते हैं। तो फिर 2 बैच। चलिए आइए, अब आइए इंट्रोडक्शन की तरफ। ये आपको जो कलरफुल चार्ट नजर आ रहा है, इसको क्या करना है, करना क्या है, ये असल बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है। इसको जो है, इसको जहां पर आप सोते हैं, कल मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वाकई हमने किया, जहां पर आप सोते हैं और जहां पर आपका सराहना होता है वहां दीवार होनी चाहिए, उस दीवार पर इसको आप लटकाएंगे। कंप्यूटर के स्टैंड पे जहां कहीं पर भी आप सोते हैं वहां पर इसको लटकाएंगे। एक चार्ट है, और एक आपको ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट कल मिल जाएगा जो लाना और ले जाना आपको, ताकि नोट कर सके। उस पर कुछ बात मैं कुछ बताऊंगा तो उस पर, या बुक है, बुक में खोल के आप लोग नोट लिखना है। आपको जो बुक दी गई है, नोटबुक दी गई है, नोटबुक में आप नोट लिख ले सकते हैं। जो ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट कल आपको मिलेगा उसके अंदर आप टिक कर सकते हैं। ये जो है आपके लिए यादगार रहेगा, 10 दिनों के तकलीफों का यादगार, जो होमवर्क किए थे आप, इसमें काफी मेहनत किए थे। इसका काम क्या करना है, जहां पर आप सोते हैं वहां पर इसको लटकाना है, चिपकाना है उसको, और इसको घूरना है रोजाना। ये स्पेशल बात, और घूरना जायज है, इधर जायज है। और एडवांस में कह रहा हूं, 4 दिन तक समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। ऊपर से नीचे देखो, नीचे से ऊपर, असेंडिंग डिसेंडिंग रैंडम, कैसे भी देखे कुछ भी समझ में नहीं आता। 4 दिन के बाद इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है समझ में आ जाएगा पूरा। ये पूरा चार इंशाअल्लाह, चौथे दिन आपको समझ में आ जाएगा, डबल इंशाअल्लाह। थोड़ा शक में दिख रहे तो
मुझे तो यकीन है, एक इंशाल्लाह काफी है मेरे। आप लोगों के लिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का इंशाअल्लाह तहकीकन ला तालिकन, शक वाला इंशाअल्लाह नहीं, यकीन वाला इंशाअल्लाह बोलते हैं इब्न तैमिया। अक्सर अपने आ रहे क्या बोलते हैं, इंशाअल्लाह मतलब उम्मीद नहीं, तो वह नहीं, इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह से वादा। तो एक चार्ट आपको दिया गया है। इससे पहले और क्या आपको मिला है, एक तो अरबिक, ये अरबिक की अहमियत के लिए सीएस के ग्रुप की जानिब से शाकिर भाई ने आपके खास तौर से, इसको घर जाके आप पढ़ सकते हैं, ये अरबी, इसको पढ़ने होते हैं। ये इंग्लिश में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अरबी में कितनी अहमियत है बता रहे हैं। और क्या कुछ पेपर्स मिले आपको, और आप लोगों को एक पेन मिला है तो ब्लू रंग का, एक ब्लैक और रेड आप लोगों को अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा आपके अपने लिए, जो होमवर्क देंगे हम उसमें मार्क लगाने के लिए, तो वो काम आए। आपको ये चार्ट दिया गया है। उससे पहले आपके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर, आप लोग ये सॉफ्टवेयर इस्लामिक आर्ट आपको वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसमें इन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पर कौन है जिन्होंने अभी तक अलीफ को बा को बनते हुए नहीं देखा, कैसे अलीफ बनता है, बा कैसे लिखते हैं। एक और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, हर कोई दुनिया में आता है तो बगैर आलिम में पैदा होता है, उसके बाद आलिम। बाद लोग देर से शुरुआत मिलती है लेकिन बहुत आगे निकल जाते हैं, तो इसलिए कुछ भी शर्माने की जरूरत नहीं कि अभी तक नहीं मिला मौका, जब आया अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। तो एक एक करके आप देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ दोहराइए ताकि आप लोग तजवीज भी अच्छी हो जाए इस बहाने। अलिफ, सिस्टर्स भी दोहराए, अलिफ, बा, 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 ये तो बहुत आसान है इंशाल्लाह आप लोग बोलो। था, एक होता है ता इंडियन, था अरबी, ता प्योर इंडियन, था जरा हम सामने थोड़ा हा के हटाना, था बोलते हैं उर्दू में, वैसा नहीं, थोड़ा सा हा ना, जैसे तेलुगु में या कन्नड़ में होता है ता था, दा धा, ता था, जो था है वो है था। हम्स, थोड़ी सी हम्स, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन इंडियन, अराअयतल्लज़ी था, अराअयतल्लज़ी अरबी। बेहतरीन शमा डाले, अगाल डाले, पूरा शेख के साथ पेल लिए, अराअयतल्लज़ी बोलते इंडियन, इतना भी करो, अराअयतल्लज़ी था, था देख लेंगे, यह था है टोकरी में आमों के था, पूरे आमा जमे थे टोकरी में, था कहना पड़ेगा, ये जबान का नोक जरा बाहर था, थोड़ी सी जुबान जितना बाहर, पूरा अंदर रखे नहीं निकलता, था तो निकालने की रास्ता था। यहां देखिए नुक्ता आएगा, ये देखिए नुक्ता, जीम, जीम तो आसान है बहुत, जा, जीम ये भी आसान है। अरबी में चीम नहीं है, अरब के लोग कम वर्ड में ज्यादा बोल नहीं सकते, अपने लोगों को ज्यादा बोलना है, बहुत ज्यादा बोले तो थोड़ा निकलते मालूमात। जीम, अच्छा उर्दू में अक्सर हिंदू इंडिया का जो सर्कमस्टेंसेस है, बचपन में आपाओं से खालाओं से ऐसा पढ़ते, तो लगा अली बे ते पढ़ते, तो खालिस इंडियन बनाए थे, तो उससे निकल जाना, नेशनल छोड़ दे के थोड़ा सा अलग एक नए प्लैनेट पर आना है हमको, अरबी प्लैनेट। तो अलिफ बा, बे नहीं पढ़ना, बा, था, ते नहीं पढ़ना, ते नहीं पढ़ना, ता, जी, हा, हा, आप लोग हा, यहां से आ रहा हा, एक होता हा ऐसा
बाद में आएगा वो हा है, जनरल लिखा यहाँ तक। ये हा, हा है नहीं पढ़ना, हा, हाँ। खै पढ़ते उर्दू में, खै नहीं है, खौ। थोड़ा सा गोल बनेगा, मुंह थोड़ा गोल बने, खौ। खा नहीं, इंडियन, खौ अरबी, खौ। दाल, ये तो बहुत आसान है। दाल, ये नोट जरिए से बाहर नहीं, दाल, दाल। सिस्टर्स भी दोहरा रहे, फैकल्टी तो। रॉ, जरा मोटा। रे बोले तो खालिस, रॉ, रॉ। अरायतल्लज़ी, भिल्ले अरबी बोल रहे। अरायतल्लज़ी, अच्छा बात नहीं नहीं तो हर चीज को अरायतल्लज़ी, हर चीज को मोटा बोलते, हर चीज को आयन, पूरा अरबी आयन समझते, बता दे। अरायतल्लज़ी क्या, हर चीज को आयन नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा सबर के साथ, थोड़ा सबर के साथ अप्लाई करना है। अल्लाह थोड़ा सा जा, जा, ये जबान बाहर निकलना चाहती, दांत भुका देते उसको, तो जा बोलते हैं, जा। हाँ, जबान आके टच खाने, जा। याद देखिए नुक्ता है ऊपर, गौर कर, जा। हाँ, उसके बाद जो लोग बिल्कुल अलिफ बा से भी आना चाह रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीन ऐसा रहेगा, शीन, शाह की जवाब आती है, शीन नुक्ते ऊपर, आसान है। हाँ, स्वाद, जरा थोड़ा मोटा, स्वाद, अरबी चेहरे बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्वाद, अभी इंडियन ही छे, स्वाद बोले। हाँ अच्छे बोले, अब पेट्रोल की दौलत पूरी दिख रही। स्वाद, स्वाद, स्वाद बोले आप, सीन कैसा होता फिर? सीन में मोटा नहीं होता, स्वाद। सिस्टर फैकल्टी था, गौर कीजिए। गौर जो है, ये जो जबान का किनारा है राइट साइड का, ये ऊपर के दांतों को लगेगा। बहुत ऐसा लगेगा बिटवीन दाल और जेड। इंडिया वाले जो जेड बोलते हैं, अरब के लोग जो दाल बोलते हैं, उसके दरमियान है ज़ात। देखने में क्या दिखेगा? वो दाल दिखेगा, दाल दिखेगा, लेकिन दाल नहीं होता। सुने जाने पैसा दिख रहे इस्तेमाल करते हो? हाँ करते हो, तब विचारों पे अपन उनको तोहमत डाल देते। कभी अपने को नहीं मालूम कि वो दाल से खरीद रहता, लेकिन बहुत फर्क रहता। दाल बहुत, ये बहुत, तो बेचारे मेहनत से लगाते अंदर, वो दिख के नहीं आता। दाल में जरूरत नहीं है, बहुत। पहले आमीन बोला तो क्या सोचते हो? दाल पड़े बात पड़े, और ये सब होता साइकोलॉजी। बहुत और जरा अरबी चेहरा, ता होता है तो अलिफ बा ता, उसमें हा है, था है, इसमें तो और जरा ठीक। वो इतना मोटा। जा एक है, जा है, रा, जा, राल, राल में जबान बा, दाल, राल, रा में जा, ये तो वो, अरे क्या वो मोटा, वो तो आइन, आइन, आइन तो निकालने होते हैं, मुर्गी खाना पड़ता है, जवान मुर्गी। आइन
माशाल्लाह, अच्छा निकाल। दोस्त ने बगैर खाए के बैठ। वाइन, ऊपर नुक्ता है, फा दाखिल, फा कॉफ, कैसा निकालते? हैदराबाद खै को काफ, काफ को खै, बताना यहाँ आता कॉफ, कुल हु अल्लाह, कुल ने बोलना ना, काफ ने बोलना, कुल इंडियन, कुल 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 बोले तो खाली हो जाओ, खै से खाली हो जाओ, कुल बोले तो पूरे हो जाओ, कुल बोले तो बोलो, कितना फर्क है? कुल बोले तो खाओ, कुल बोले तो खाली हो जाओ, कुल बोले तो बोलो। क्या बोलना? कुल अल्लाह वाद, कुल, लाम, का, का थोड़ा सा हा ना, का, का, काफ इंडियन, काफरू, काफिरुन, काफिरुन, कुल या अय्युहल, कुल या अय्युहल काफिरून, खा, खा, हा नहीं आना, थोड़ा सा हमस, खा, का, लाम तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, लाम, मीम भी बहुत आसान है, नून सब आसान है, नून, हा 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 ये तो बहुत जनरल है। एक हा इधर से आता, हा खा दाल, हा उधर, ये हा जनरल, हा ऊपर, हा वाओ, या अभी ये जो आप लोगों के लिए वॉवल्स के लिए है, ये आप लोग घर में जाके देखें, जो बिगिनर है उनके लिए। अलिफ बा मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर आप देखेंगे बा के ऊपर जज़म है, दाल, छोटा दाल के साथ दिख रहा है, वॉवल साइन, उसको अदा पढ़ेंगे, ब, रुकेंगे, स्टॉप करते, ब, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ब, बा के ऊपर जबर है तो बा, बा देखेंगे, बा, बा के नीचे दे रहा तो ये उब है पहला, बा है, बी है, बा के ऊपर पेश है तो बू, बा अलीफ आ गया, थोड़ा खींचते हैं, बा वो बू, ये बो होगा, बा के ऊपर जबर आया, वो आया तो बो, बा के ऊपर पेश आया तो बू, बा के नीचे दे रहा है तो बी, बा के ऊपर जबर और वो आया, बो, बै, बुन, दो पेश आए तो बुन, दो जबर आए तो बन, दो दे रहा है तो दो तस्जीद डबल आया तो डबल वा, ब, अब्बा, अब्बा, अम्मी, अब्बी, अबी, रब्बी, रब्बुना। तो ये 16 तरीके से प्रोनाउंस होता है एक वर्ड, खाली किससे वो बदल लेते। तो आपको क्या करना है होमवर्क में या घर को जाए क्या करना है, बाकी के जितने अल्फाबेट्स है सबको इस पर अप्लाई कीजिए फ्रेंड, पूरा हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई बिगिनर यहाँ पर है जो चाहते हैं भाई मेरे को तो अलिफ बा नहीं आता, तो उनका फोबिया खत्म। कोई है भी फोबिया में बिगिनर, अलिफ बा का फोबिया खत्म। फोबिया मतलब खौफ, डर, अरबिक पूरे बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स सारे खत्म। चलिए अब हमारे पास आधा घंटा है, ये बड़ा मेन है असल आज का जो हमारा असल जो मैं लेसन आपको लेना चाहूंगा वो ये है। अभी तक जो आपको बता रहा था एक दूसरे को समझने के लिए शुरू का, और कोर्स क्या है उसका तारुफ, फिर उसके बाद बिल्कुल बिगिनिंग अगर कोई है तो वो लोग भी हमारे साथ में आ जाता है। क्लास में पूरी यूनिफॉर्मिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी ताकि कोई भी ये ना समझा रहे मैं समझ में नहीं आ रहा, अरशद में मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, किसी को ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आप महसूस कर रहे हैं कि आप
एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब यहां से जो हमको आगे बढ़ना है वो है चार्ट। ये समझ, इस पर मैं आपको कुछ अभी जो दूंगा ये है आज की क्लास। इस पर होगा आपका कल का होमवर्क 4 घंटे वाला, तपाने वाला, मुसीबतें डालने वाला, जिसको मैं बहुत चाहता हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट बताएंगे। ठीक। अच्छा ये बताइए कि बच्चा सबसे पहले क्या बात करता है? माँ। पहले सिस्टर अपना बोल रहे, कभी दोनों छोड़ के दादा बोल रहे, कुछ भी समझ में नहीं आया गिड्डा, कुछ भी जो समझ में आया लड्डू, क्या डायरेक्ट काम की बात पैसा। क्योंकि बच्चे एडवांस है, अब्बा अम्मी पैसे दो बोलने लगा, पैसा डायरेक्ट काम की बात। तो सही जवाब कौन दे सकते? तमिल में हो चाहे मलयालम में हो चाहे आ बोलता, पहले आ बोलता। अच्छा ओ बोलता, तो थोड़े वावल्स निकालता। तो बच्चा जब पहली मरतबा बात करता तो बिटवीन वावल्स और अल्फाबेट क्या बात करता समझ में नहीं आता हो, कौन समझना नहीं मालूम, कौन सी मखलूक आना है। लेकिन इतना तो पक्की बात है कि वर्ड नहीं बोलता हो ना सेंटेंस बोलता है। बच्चा शुरुआत करता है अल्फाबेट से, आ बा, चीखा मारते 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 जाता अब्बा, उसके जुबान से निकलता अब्बा। उस दिन पूरे खानदान में खुशखबरी, अब्बा बोले अब्बा बोले। अम्मी कब बोलते? अम्मी अम्मी बेचारे पीछे पड़ जाए। इतने दिनों से मैं तवज्जो दे रहा हूँ, वाले साहब तो बाहर होते ज्यादा, तो मेरा एक दिन अम्मी बोलते, खत्म मसला। तो लेकिन पहले तो वर्ड अल्फाबेट, फिर उसके बाद वर्ड। अल्फाबेट से फॉर्म होता है वर्ड, वर्ड से फॉर्म होता है सेंटेंस। तो बच्चा पहले आ बोलता, उसके बाद अब्बा अम्मी बोलता, जब सेंटेंस बनाता अब्बा पैसे दे रहे तो घर छोड़े चल जाता। ये है लाइफ। तो कुरान मजीद किससे शुरू हुआ? वर्ड से शुरू हुआ, अल्फाबेट से शुरू हुआ या सेंटेंस से? मतलब सूरह फातिहा छोड़ के सूरह बकरा किससे शुरू हुआ? अल्फाबेट है। अल्लाह तो अक्सर दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, अक्सर वो लोग लैंग्वेज सिखाने के लिए ग्रामर का सहारा लेते हैं। ऊपर वाले के सिखाने का निजाम ग्रामर नहीं है, ऊपर वाले के सिखाने का निजाम अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस है और कम्युनिकेशन पहले ये है। क्योंकि ये जो चलती है इससे चलती है, इससे बाद में चलती है, इससे प्रोफेशनलिज्म आता है। ये जो देखते हैं आप, इससे ग्रामर आएगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, लिखने की ताकत आएगी, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये जो ताकत है, बोलने की ताकत का ताल्लुक इससे। इसीलिए आप देखते हैं कई जगहों पे इंग्लिश स्कूलों में बहुत सारे बच्चे लिखने के काबिल आते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते। माहौल होना, तो आप माहौल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ताकि सुनना भी जरूरी है आपका। तो हमको 2 सबक मिले, हम लोगों के हिसाब से जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर वाले कैसा जुबान सिखा रहे, ऊपर वाला जुबान सिखाने का जो तरीका है वो है अल्फाबेट से शुरुआत करे, उसके बाद वर्ड में आए, उसके बाद सेंटेंस में जाए। तो हमने भी पहली सीढ़ी क्या ले ली? हुरूफ तहज्जी। आप लोग अपने चार्ट पे मत डालिए, ये मेरे पास और एक है इसलिए ये आप लोग खूबसूरत लटका कर। अलबत्ता कल जो ब्लैक एंड व्हाइट देंगे उसके अंदर आप लोग पूरे ताकत आजमा इस पे कर सकते। पहली सीढ़ी है, कितने सीढ़ी है गिनिए आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 10 क्यों नहीं है? 10वें में तो आपको ठहरना है इधर आके इंग्लिश। 9 दिन के सीढ़ी, 9 दिन के 9 सीढ़ी है। 10वें दिन खाली रखी हुई है प्लेटफॉर्म, आप आएंगे इंशाल्लाह 10वें दिन स्पीच देंगे और मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दादो, कॉन्फिडेंट नहीं है ना, सहरी का हुई। तो हुरूफ इस कुरान मजीद शुरू हो रहा है अल्फाबेट से, कुदरत का निजाम शुरू हो रहा है अल्फाबेट से। हमारा भी चार्ट शुरू अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ तहज्जी, उसके बाद वावल्स है जो मैंने आपको हुरूफ तहज्जी आपको मैंने यहां से सिखाया है। वावल्स का जो 16 का गेम है आपको मैंने पेपर दे दी।
तो एक माने में आज पहले दिन में हम तीसरे सीढ़ी में जाएंगे। ये जो मेन हमारा आपका है, तो आप लोग सुनने के लिए क्या कीजिए, बीबीसी न्यूज बहुत क्लैरिटी के साथ सुनाई देती है, दूसरे भी albashir.net है या अल जजीरा है, अगर आप नेट से सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन बीबीसी की बहुत क्लैरिटी के साथ मिस्र के अरबी बोलने वाले बीबीसी अरबी रोजाना आप लोग सुनिए, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलता है, 1 घंटा सुनते 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 ये चलना शुरू हुआ। इसका ताल्लुक याद रखिए इससे, आप लोग कितना भी लिख लेंगे, लिख लिख के बोलना चाहते, लिखते थे लिखना आता है, लिखने से क्रिएशन आएगा, बुक्स बनेंगे, बुक के बात करने नहीं आएगा। तो आप जो बताए थे कि मदरसों में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे लिख लेते हैं, बुक भी लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते, वजह क्या है, सुने नहीं कभी। बच्चा जो है सुना, वो लिख नहीं सकता लेकिन बोल नहीं सकता, तो लिखने की ताकत उसके रगा, उसकी ताकत अलग है, बोलने की ताकत अलग है। तो ये चीजें मदरसों में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह। इसलिए क्या होता है, जैसे मदरसे वाले सऊदी अरब जाते हैं अच्छी अरबी बोल रहे, क्योंकि माहौल मिलता है, तो आप अभी से माहौल बना सकते हैं। आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन का कुछ तो फायदा होना चाहिए, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, आप यहां बैठ के भी माहौल कायम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक तरीका वो है। अब आइए, मुझे 10 मिनट चाहिए आप लोगों के, फिर अटेंशन, एक मरतबा उठ के बैठ जाइए, पूरे उठ के बैठ जाइए। ये जो 10 मिनट है ये बहुत अहम है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम अल्फाबेट समझ गए, बहुत आसान है, वो तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए, वो तो ऑलरेडी हम पढ़े हुए थे, याद दिलाने के लिए रिमाइंड। अब जो है अल्फाबेट से बनता है एक एक वर्ड, अल्फाबेट जमा होते होते थे क्या, पहले क्या आएगा, वर्ड। पूरी अरबी ग्रामर 3 वर्ड पे टिकी हुई। क्या है जुमला, पूरी अरबी ग्रामर 3 पिल्लर पे टिकी हुई है, यानी कि अरबिक ग्रामर बेस और 3 पिल्लर। बेस किस पर है, 3 पिल्लर्स पे है। उन 3 पिल्लर को नाम दिए गए, अलग अलग नाम दिए गए, 3 पिल्लर है। वो 3 पिल्लर क्या है, इस्म फेल हर, दोहराइए, इस्म दोहराते, फेल हर, सिस्टर भी दोहरा रहे, हाँ, इस्म फेल हर, इस्म फेल बोलते हैं बस, हाँ कितना है। पूरी अरबी ग्रामर हर 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 HAR है, इस्म फेल हर, ये पूरी अरबी ग्रामर इसी पे टिकी हुई है। कोई भी दुनिया का वर्ड ला लीजिए 3 से बाहर नहीं निकल सकता, या तो वो इस्म रहेगा, आप अरबी का कोई भी वर्ड उठा के लाइए, कोई भी वर्ड, हर अरबी में क्या है, हर वर्ड का नाम है, या तो वो इस्म की कैटेगरी में आके फिट होगा, या तो फेल की कैटेगरी में आके फिट होगा, या तो वो हर्फ की कैटेगरी में आके फिट होगा। अरबी पूरी जितनी भी ग्रामर है, जो भी वोकैबुलरी, पूरी डिक्शनरी उठा के लाइए, पूरी डिक्शनरी उठा के लाइए, 3 में से कहना कि आना है, इसके अलावा कोई हो ही ना सकता, चैलेंज है, कोई लाके बता सकता हो। तो चैलेंज देने का फायदा क्या होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इस्म फेल हर, इस्म का मतलब नाउन, इंग्लिश का नाउन अलग, अरबी का नाउन अलग है, क्या है बताओ, वर्ब यानी फेल, फेल यानी वर्ब। इंग्लिश में जो वर्ब कहते हैं, अरबी में उसको क्या कहते हैं, फेल। लेकिन अभी मैं नाउन वर्ब प्रीपोजिशन में सुनने वाला। हर्फ का मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी उसका पोजीशन थोड़ा आधा होता, मुकम्मल नहीं होता, उसका पोजीशन मुकम्मल, इनकम्प्लीट पोजीशन होता उसका। यानी मतलब क्या है, अब आइए समझेंगे। इस्म का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग, उसके अंदर मीनिंग रहता, वर्ड के अंदर, उसके अंदर अपना एक मीनिंग रहता, किसी और का वो नीड होना जरूरी नहीं, खुद अपने अंदर उसका एक मीनिंग रहता है। मीनिंग विदाउट टेंसेस, क्या मतलब है, मीनिंग विदाउट टेंसेस। टेंस मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, मतलब उसके अंदर मीनिंग रहता है, टेंस नहीं रहते। माजी, हाल, मुस्तकबिल, मतलब गया,
ऐसा माना, गया, जा रहा है, जाएगा, ऐसा माना उसके अंदर नहीं रहता, खाली मीनिंग रहता। नॉन मतलब पहाड़ों के नाम, बॉटनी, जितने भी पेड़ पौधे उगने वाले जितने भी दुनिया में दरख्त है उन सब के नाम होते हैं। इंसानों के नाम, ह्यूमन एनाटॉमी, इंसान के जिस्म के आज़ा के नाम, आंख, गुर्दा, नाक, जो भी नाम है, हिस्से हैं उगने वाले या ठहरे हुए, जैसे कि गेहूं है, पहाड़ है, कोई भी चीज जो सॉलिड चीजें, आइसोलेटेड या सॉलिड चीजें, या उगने वाली चीजें जैसा कि दरख्त है, जितने भी चीजें हैं, ऐसे जितने भी नाम हैं, अक्सर ये सब किसमें आते हैं? इंसान, जानवर, जमादात, हैवानात, एनिमल्स, ज़ूलॉजी पार्क, पूरा इसमें आता। नॉन बोटानिकल गार्डन, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स पूरे, यानी जो भी नाम से रिलेटेड है, नाउन जिसके अंदर भी मीनिंग हो लेकिन टेंसेस ना हो, वो हो गया नाउन। फेल कहते हैं मीनिंग विथ टेंसेस, जिसके अंदर मीनिंग हो लेकिन टेंसेस भी साथ में हो। मतलब ज़हाबा मतलब गया, आया, जा रहा है, जाएगा, कोई भी ऐसा। इंग्लिश के वर्ब में और अरबी के वर्ब में बड़ा फर्क है। इंग्लिश का वर्ब कैसा होता है मालूम? इंग्लिश में अगर एक्शन भी हो तो उसको वर्ब बोल देते। इंग्लिश में जैसे अब मैं आपको मिसाल देता हूं, करना, खाना, पीना, सोना। अरबी में ये वर्ब है कि नॉन है? जल्दी बोलिए, देखे गलती होगी। हाँ सिस्टर बताए, खाना, पीना, सोना, ओढ़ना, बिछोना, सब लोग वर्ब बता रहे हैं, कई लोग, कुछ लोग नॉन बता रहे हैं। वजह क्या हो रहा है? कंफ्यूजन क्या हो रहा है? ओढ़ना, ओढ़ा, ओढ़ रहा है, ओढ़ेगा माना नहीं आ रहा, टेंसेस नहीं इसमें, खाली ओढ़ना एक एक्शन है। तो ये अरबी में क्या हो रहा है? ये नॉन है, क्योंकि इसके अंदर टेंस नहीं। तो एक्ट इंग्लिश में क्या हमारी साइकोलॉजी क्या बनी हुई है? इंग्लिश में जिसके अंदर भी एक्शन हो वो वर्ब है, लेकिन अरबी में वैसा नहीं, एक्शन भी हो साथ में क्या होना चाहिए? टेंस। मेन चीज टेंस। समझ में सिस्टर्स को कि अरबी में मीनिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए? टेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया फैकल्टीज? पूछिए, सबको क्लियर हो गया चाहिए? इंग्लिश में सिर्फ एक्शन होता है तो उसको वर्ब कह देते हैं, अरबी में वैसा नहीं है। अरबी में कहते हैं कि एक्शन के साथ साथ टेंस भी होना जरूरी है। और फेल के लिए गया, जाना नॉन है, नॉन। अरबी में इसको खाया फेल है, खाना नॉन है। अच्छा अब ये बोले जाने वाला, खाने वाला, सोने वाला, मारा हुआ, पड़ा हुआ, इससे में, क्योंकि पड़ गया, जाने वाला कब गया नहीं मालूम, जाने वाला कब गया नहीं मालूम, तो टेंस नहीं है उसके अंदर। जाने वाला कब गया नहीं मालूम, क्लियर नहीं। तो जिसके अंदर भी मीनिंग है लेकिन टेंस नहीं आ रहा, फौरन नाम में डाल देना। मीनिंग विथ टेंसेस फेल, मीनिंग विदाउट टेंसेस नाउन। हर्फ बहुत आसान है, नो टेंसेस नो मीनिंग, नो टेंशन, टेंशन इसलिए है। इसके अंदर मीनिंग कैसा रहता मालूम? इनकम्प्लीट मीनिंग रहता। प्रीपोजिशन जिसको आप बोलते हैं, हर्फ, हर्फ हर्फ को पहचान, अब आप डिक्शनरी में कोई भी वर्ड उठाएंगे ना, या तो वो हर्फ रहेगा, या तो वो इस्म रहेगा, या तो फेल रहेगा। पहचानेंगे कैसा? देखकर पहचानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 1-2-3 दिन और लगेंगे। मीनिंग से अलबत्ता आज पहचान ले सकते हैं। आज का जो दर्स है अगर आपके दिमाग में रहा तो मीनिंग से आप लोग पहचान ले सकते, मैं बोल सकता हूं। कैसा मीनिंग में? अगर गया, खाया तो क्या बोलते हैं आप लोग? ये क्या है बताएंगे आप? फेल। जाना, खाना, पीना, मीनिंग आ रहा लेकिन टेंस नहीं आया तो क्या बोल देते आप लोग? अच्छा, प्रीपोजिशन में क्या आता? माना पूरा मुकम्मल नहीं होता, माना मुकम्मल नहीं रहता उसके अंदर। मिसाल के तौर पे वहां पर है ले लो, कहां पर? पर, वहां पर है ले लो, कहां पर? वहीं पर भाई, वहीं पर टेबल पर। जब तक टेबल नहीं जुड़ा, पर का मतलब समझ में आया? अला, अला कहते हैं पर को अरबी में। तो पर का जो वर्ड है, पर, वास्ते,
साथ में, मैं उसके साथ आ, किसके, मैं साथ में आ, किसके, तो जब तक जुड़ता नहीं कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं रहता, किसी का नीडी रहता और उसके अंदर टेंस नहीं रहता। तो आप लोग मीनिंग से अगर इस्म फेल हर्फ समझना चाह रहे तो बहुत आसान है। टेंसेस देखते क्या समझ जाना, दोहराइए, टेंसेस देखते क्या समझ आप लोग, फेल। टेंसेस नहीं रहते ही इस्म, टेंसेस भी नहीं है, मीनिंग भी नहीं है। इसका मतलब क्या, नॉन और वर्ब में दोनों में मीनिंग रहता है, सिमिलैरिटी है कि मीनिंग रहता है। फर्क क्या है, इसमें टेंस रहता है, इसमें टेंस नहीं रहता, बस। अच्छा, आपके लिए बहुत आसान कर दिया। इसका मतलब मैं पूरी अरबिक ग्रामर जिस पे टिकी हुई है, 3 किस्म के वर्ड्स पे कैटेगरी पे पूरी अरबिक ग्रामर टिकी हुई, उसी से तो आगे सेंटेंस बने, वर्ड से सेंटेंस बनेंगे। तो पूरे वर्ड, तो अरबी में क्या करे, पूरे वर्ड को नाम दिए, इस्म फेल हर्फ, पूरी डिक्शनरी ये 3 में कहीं ना कहीं आके फिट होगी। तो आपके लिए इस्म फेल समझना बहुत आसान हो गया। अब हर्फ को जो है ना याद कर लेना पड़ता। तो कुछ हरूफ है, स्पेशल हरूफ 17 है। यहां है देखिए, बा एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कितने हैं, 17। यहां है देखिए, फॉर्म ऑफ सेंटेंस, उसके नीचे हुरूफुल जर लिखा हुआ है, हुरूफुल जर लिखा हुआ है, मिल गया सबको, 17 वर्ड है। क्या करना है, हरफे जर की दुकान बड़ी छोटी है, ऐसा बेचते बंद हो जाती है, घर में चल जाता है उसका। इस्म और फेल की दुनिया बहुत बड़ी है, उसको गिन नहीं सकते। कितने इस्म है गिन सकते दुनिया में, कितने नाम है, कितने एक्शन है गिन सकते, नहीं गिन सकते। लेकिन हुरूफ को गिन ले सकते, थोड़े 17 है, बाकी थोड़े और है। मतलब मेन स्पेशल जो अपने काम आने वाले हैं ज्यादा, वो 17 है। दरम्यान में भी आते कभी कभी, वो बताया तो मैं, 17 मेन है। तो हर्फ की दुकान बड़ी छोटी है, बाकी के लोग क्या बताओ, उसको डेफिनेशन वाइज याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए रट्टिज्म। कैसा याद करना है, पहला बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंदो, मुद, ये 2 जो है ज्यादा यूज नहीं होते, मतलब कुरान मजीद में ज्यादा नहीं, अरबिक में ज्यादा यूज होते। फिर भी आप लोग याद होता है याद करिए, नहीं तो भी 2 छोड़ना छोड़ दीजिए फिल वक्त के लिए, याद हो आते। लेकिन मैं इतना बोलूंगा याद हो आते। मुंदु, 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 मुद, मुद, मुंदु, मुद, खला, रुब्बा, 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 RUBBA, रुब्बा, रुब्बा, हाशा, मिन, मिम, यमयन, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये 17 वर्ड है। ये कल आप लोग को याद करना है। हाँ, इसके जो मीनिंग आप लोग कल मैं बताऊंगा, कल ये कंटिन्यू होगा। आज का जो सबक है कल ये और कंटिन्यू होगा। थोड़ा आप लोग याद करके आने की कोशिश कीजिए, कल आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप लोग याद कर लेंगे, हाफिज कुरान बच्चा हाफिज करता, आलिम को आसान हुआ था। बच्चों पहले बचपन में हिफ्ज़ कराए थे, तो नए समझ में भी आया तो याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल इसको और अच्छा समझ में आएगा आपको। आज का जो सबक है ये कल और एलॉबरेट होगा, कल और अच्छा समझ में आएगा, कल और मिसालें दूंगा मैं। तो आज का सबक इतना ही है, इस्म फेल हर्फ खत्म। इस्म फेल हर्फ, इस्म फेल को आप डेफिनेशन वाइज समझ जा सकते, अलबत्ता हर्फ को समझना है तो 17 वर्ड। कल कोशिश कीजिए आप लोग सुनाए मुझे, क्या सुनाना। हाँ, बा, बा, बिस्मिल्लाह बोलते ना, से का माना आता बा में। ता, ता खसम के माने में आता है, अभी ज्यादा मीनिंग हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ता, काफ, दरमियान में जो वो आ रहा है वो कंजंक्शन का एंड के माने में, समझाने के लिए। असल जो वर्ड है बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंदु, मुद, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। कल सुनाना आप लोग।
इंशाल्लाह। कैसा सुनाना है? नहीं भाई 17 वर्ड सुनाना, 17 वर्ड थोड़ी देर ना, इफ्तार में बैठे बैठे, उससे पहले असर के बाद मस्जिद में बैठते, जिक्र अस्कार होने के जाने से पहले, जोहर की नमाज के बाद, उससे पहले, दिन में खाने का बनाने का टाइम, सिस्टर्स के लिए भी आजकल खाने बनाने का कोई झंझट ही नहीं है, दोपहर खाने का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए चुन के रखे हम लोग ये टाइम, ताकि वो जो खाने पीने का टाइम था वो बच के इधर आ जाए। कैसा सुनाना है मालूम? बाता ऐसा नहीं होना है, बाता काफला वाओ मुंदो मुस्खला रुब्बा शामिना दापिया नाला ताइला, खत्म, 17 हो गए। हाँ 2 पैंडला मारे तो गांव खत्म, छोटा गांव है, ऐसा 100 की स्पीड गए तो छोटा गांव खत्म हुआ था। फिर बोलना ठीक, मैं 3 मरता नहीं 4 मरता बोलता हूँ, होमवर्क सुनाते क्या पहले, कल सुनाना। बा ता काफ लाम वाओ मुंदु, लिख रहे हैं आप? लिख रहे हैं तो लिखिए। बा ता टीए ता काफ लाम, काफ लिखे, हाँ काफ, ये काफ है, काफ काफ लाम वाओ वाओ मुंदु, मुंदु पेश है, पेश उसमें मुंदु, वो एक छुड़ गया, वरना वो भी आप लोग आसानी आती थी। तकरीबन सबका मैं रोमन लिख के आप नोट में दिया हूं, तकरीबन नोट, वो एक रह गया, पता नहीं क्या छुड़ गया, कोई मतलब। मुंदु मुंदु दाल दाल मुंदु, हाँ जेड यू मुंदु, मुज मुज यम यू जेड मुज, खला खला, रुब्बा आर यू बी बी ए रुब्बा, रुब्बा माने फ्यू, फ्यू को बोलते। हाशा हाशा एक्सेप्ट को बोलते, एक्सेप्ट बोलते ना, इल्ला, रुब्बा हाशा। मिन, मिन तो मशहूर है, मिन से फ्रॉम, ये तो मशहूर है, मिन मिन। खत लिखते ना, फ्रॉम बोलते हैं, मिन डालते हैं, मिन, रुब्बा हाशा मिन। अदा अदा, मिन माने फ्रॉम, मिन मिन यमयन, मिन अदा, अदा एक्सेप्ट को बोलते, रुब्बा हाशा मिन अदा। फी यफ आई फी, मिन अदा फी। अन, अन माने अबाउट, अन। अला अबाउ, पर, अला तो मशहूर है। खत्म अल्लाहु अला खुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर डाल दी। अन अला हत्ता, हत्ता मतलइल फजर, टिल, हत्ता मतलइल फजर, तो हत्ता, अन अला हत्ता इला, अला हत्ता, फी अन अला हत्ता इला। किसी को प्रॉब्लम है? हत्ता इला, इला माने टू, इला माने टू, हत्ता माने टिल ना, वो अलिफ लाम है, वो अलग है। दा दा का मतलब, हाँ नहीं, ये स्पेशल हर्फ है। कई और हरूफ की कुछ कैटेगरी है, वो दरम्यान में बताता चल जाता हूं मैं, लेकिन ये स्पेशल है। इसकी स्पेशलिटी क्या कल बताता हूं, ये ऐसे स्पेशल है। चलो अभी हमारा खत्म हो रहा है, इसकी स्पेशलिटी बताया तो मैं आपको, नहीं खत्म करना। बित बित माने, माने ने बताया मैं आप लोगों को, इसको भी थोड़े बहुत बताया याद करने के लिए, पूरे कल बताऊंगा माने भी, क्योंकि पहले बैच को भी माने नहीं बताया। मैं 2 आंख की तरह है मेरे 2 बैचेस, एक आंख को फोड़ नहीं सकता मैं। तो आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए, कोशिश कीजिए। माने में क्या कंफ्यूज है, क्योंकि माने बताया तो पूरा बताना, नहीं तो कंफ्यूज होते, ठीक है। क्योंकि बा के 10 माने हजम करते, बा के 10 माने खाली फिर 73 फिर निकलने से पहले यही डाल के निकलेंगे। तो दोहराना है एक मर्तबा, फिर दोहराना है,
चलिए दोहराता हूं, 5 ने 6 मरतबा दोहराता हूं, होमवर्क करते तो बोल। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंदु, मुद, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। तो अच्छा, आपको एक स्मार्टर वे, एक मैजिक बताना है। क्या बताना है मालूम? आप बाहर निकल के, अब कल इसका, आज तो आपको 17 वर्ड याद हो जाएंगे रात में इंशाल्लाह, वो तो यकीन है मेरे को। कल इसके मीनिंग आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। मीनिंग आ जाने के बाद आप चैलेंज कर सकते हैं बाहर जाके कि कुरान मजीद के हर पेपर में, जो भी पेपर है, एक वर्ड का तो माना बता ले सकता हूं मैं, बोल के चैलेंज कर सकता हूं। क्यों बोले? क्योंकि ये जो 17 वर्ड है कुरान मजीद के हर पेपर में, कुरान मजीद के हर सफे में, इसके बगैर वर्ड होता ही नहीं। वो समझ में आया 50% का चक्कर? समझ में आप 50% इल्लाश कितने की? 30-40 इल्लाश है। समझ में आया वोकैबुलरी? तो हम लोग जो है टेक्निक्स नहीं फॉलो कर रहे। अगर वो टेक्निक फॉलो करे तो कुरान में दूर नहीं। अल्लाह ताला क्या बोले? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया। क्या है कोई इसे जिक्र लेने, नसीहत लेने वाला? फहल मिन मुद्दकिर, तो मुसलमान बोले, मुसलमान समझ में नहीं आता, गैर मुस्लिम समझ के कलमा भी पढ़ रहे। हमारे हैदराबाद की जो बैच निकली, वो लोग और एक बैच निकाल दी। ये कोर्स सीखने वाले उनके स्टूडेंट पैदा हो चुके हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग भी स्टूडेंट बनाइए घरों में, नवासे, पोतरे, भाई, भतीजे, खानदान में जो भी है, उन सबको सिखाने का। ये आसान इसलिए करें, नॉन कमर्शियल है, फ्री, कोई हुकूक नहीं है, लेके बना, अपना नाम डाल लीजिए, कोई नहीं, अपने को इल्म बंटना है बस, खत्म। ठीक है, कोई मसला नहीं। कुछ तब्दील कर रहे हैं अगर, तो तब हमको इत्तला दीजिए ना, हमारे नाम पे तब्दीली हो रही कहते हैं। बाद में पता चला मेरे हाथ में आ रहा, ये मेरा है, मैं कब देखा बोल के, ऐसा नहीं। तो आप लोग ये वर्ड का जाके चैलेंज कर सकते हैं माशाल्लाह। तो 50% ग्रामर, जो ग्रामर यूज हो रही, 50% कुरान में रिपीट हो रही है। और जो वर्ड्स है वोकैबुलरी 212 वर्ड्स जो आपको फाइल में है, जिसको कई लोगों ने याद कर लिया माशाल्लाह। कल जो होमवर्क हम लोग सुनने वाले हैं, क्या चेहरे एकदम ब्लैंक, एकदम पॉस, एकदम क़यामत में हौलना क्या तारी होते हैं। तो ठीक है, फिर हम अपना सेशन खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत प्यारा सा होमवर्क है, जो आपके हड्डी और दर्द करने वाला। क्या है होमवर्क? बहुत आसान है, खुश हो जाएंगे आप, बहुत दिलचस्प है। आप लोगों के पास पेन दिया गया ऊदा, ब्लू, ब्लैक और रेड, इजाफा करना है उसमें। इस्म के लिए लिख लीजिए रेड, रेड पेन इस्म के लिए, वर्ब के लिए ब्लू, हर्फ के लिए ब्लैक। क्या करना है? आप लोग वर्ड टू वर्ड कुरान किसके पास है घर में? दारुस्सलाम का वर्ड टू वर्ड कुरान में का तर्जमा वर्ड टू वर्ड है। चलिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए उर्दू में हिंदुस्तान में भी अवेलेबल है, नजर अहमद साहब बोल के, नजर अहमद उर्दू में भी है। जिनको उर्दू आता है, पढ़ना आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कर सकते हैं, उनके पास उर्दू में 400-600 रुपये उसका हदिया है, तो बेंगलुरु में ही मिल रहा है। कई इंग्लिश में जिसको अगर होना है तो दारुस्सलाम का CS पे अवेलेबल है, तो आप उसको लेके ज़ेरॉक्स करा लीजिए। आखिरी का 30वें पारे का लास्ट हाफ, जो जिसमें हमको सूरह याद है, कुल अल्लाहु अहद, यानी कि सूरा नंबर 88 से लेकर आखिरी सूरा 114, 124 सूरे भी है क्या लाते हैं? तो 114 कितने सूरे कुरान मजीद में? 114। शक है? 114। तो होमवर्क कहां से कहां तक है? 88 सूरा नंबर 88, सूरह गाशिया।
सूरह गाशिया सूरा नंबर 88 से लेके सूरह नास सूरा नंबर 114, ये जो सूरे हैं आपको कहां से मिलेंगे सूरे? या तो आप CS पे जाके ज़ेरॉक्स करा लीजिए, 20 पेजेस कुछ रहेंगे, या नजर अहमद साहब का वर्ड टू वर्ड है, या आपके पास अब्दुल्ला यूसुफ जो भी ट्रांसलेशन है वर्ड वर्ड करा तो फायदा क्या रहता है, खोल खोल के आप एक एक वर्ड उसके अंदर मिल जाता है। अगर वो आपको नहीं आता तो और एक तरीका, गूगल पे जाए, गूगल में इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड मारिए, मारते आपको पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। उसमें से आप 30वां पारा मतलब सूरा नंबर 88 मारिए, वहां से लेके वहां तक प्रिंट दीजिए, पूरे आपको प्रिंट मिल जाएंगे। क्या करना है उसमें से, करना क्या है वो निकाल के, मिसाल दे रहा हूं मैं, हाँ पूरे देख रहे हैं, अब बाद में देख लेंगे, ये मेन है पहले, एक मिनट कॉम। चलिए होमवर्क कैसा निकालना है, मान लीजिए बिस्मिल्लाह है तो वर्ड टू वर्ड में क्या करते हैं, हर एक को स्प्लिट कराते हैं अलग अलग। अब बा 17 वर्ड में आ रहा क्या देखिए, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, हार। प्रीपोजिशन बोलना छोड़ दीजिए, वो नेशनलिटी छोड़ दीजिए, अब इंग्लिश अंग्रेजों की वक्ता तौर पे 10 दिन के लिए, तो क्या बोलेंगे हम, हर्फ। तो आप लोग क्या करना है, हर्फ लिख लेते, नहीं बैठना है, हर्फ के बजाय क्या डाल देना है, ब्लैक, ब्लैक, हाँ ब्लैक से। इसिम में क्या डालना है, रेड से डालना है, वर्ब में क्या डालना है, ब्लू से डाल देना है। तो उस पर खाली मार्क कर दीजिए, ज़ेरॉक्स कराइए आपका, या आपके पास अब्दुल्ला यूसुफ अली का जो भी ट्रांसलेशन है उसको निकालिए, उसका माने पे गौर कीजिए, माने पे गौर कीजिए। मीनिंग विदाउट टेंसेस क्या डालेंगे, रेड। मीनिंग विद टेंसेस क्या डालेंगे, ब्लू। नो मीनिंग नो टेंसेस, ब्लैक। तो अब यहां पर क्या डालते हैं, बा, हर। इसिम नॉन है या फेल है, इसिम माने नाम, दार बात है, इसिम बनाए इसिम से, उसको तो फेल डाल ही नहीं सकता कोई। नाम से, किसके नाम से, अल्लाह के। अल्लाह नॉन है वर्ब है, नॉन। पूरे दुनिया के जितने नाम है, नामों में सबसे बड़ा नाम किसका है, अल्लाह के। बाकी के फिर सेकेंड नाम कौन सा है, अर्रहीम। फिर अल्लाह के नामा खत्म होने के बाद नबियों के नाम, फिर सहाबा, उसके बाद हमारे नामों की है बारी। सबसे बड़े नाम अल्लाह ताला के ना। अच्छा भाई, इय्याका नाबुदु है, तेरी ही, नौन के किस्म है, तेरा, मेरा, उसका, ये भी नौन के किस्म है। इबादत करते हैं, वर्ब है, नौन है, हर्फ है। इबादत करते हैं, इबादत कर दिए, इबादत करते हैं या करें, कर रहे हैं या करते हैं, इबादत करेंगे, फेल है। मीनिंग है, साथ में टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, फिर भी खबरों को जाते हैं। ऐसा बोलते फिर भी जाते। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो यहां पर क्या डाल देंगे आप, दिलचस्प है, सूरा नंबर 88 से आए, बिल्कुल कितने, क्या कितने, 88, 98, 5 मिनट में आता होमवर्क है। और कुछ कहना है, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ورتل القرآن اصبح بصوتك